Good morning, students. Welcome to this session. Today we'll study prepositions. As you can see from the word itself, we can break this word into two, pre and position. Pre means before and position means place. So what are we talking about? We are talking about, if you look at the definition, a word that is placed before a noun or a pronoun to tell its relation with another noun or a verb or an adjective. So we can say a preposition is a word that is placed before a noun or a pronoun to tell its relationship with another noun, a verb or an adjective. Let us see some examples rather. Say I can say I put the keys on the table. Here my preposition is on. It comes before a noun. Noun क्या है हमारा? Table. तो यहाँ पर हमारा preposition एक noun के पहले आ रहा है और ये बता रहा है कि इस noun का इस नाउन से क्या संबंध है. हम इस ऑन को देखते ही बता सकते हैं कि टेबल के ऊपर चाबियां रखी हुई हैं. Let us take another example. I say it can tell you the relationship of a noun to a verb. He jumped from the roof. Preposition is from. नाउन के पहले आ रहा है. हमारा नाउन क्या है? रूफ. ये हमारा preposition है ना. और अब क्या कर रहा है? हमारे ये preposition हमारे इस नाउन रूफ का संबंध किससे बता रहा है? वर्ब से. कहाँ से कूदा? छत से कूद गया है ना. Let us take an example of the third thing I am saying. I am fond of say fruits. यहाँ पे मेरा preposition है of. किसके पहले आया है? Noun fruits के पहले. ये मेरा noun है. अब ये क्या कर रहा है? इस noun का संबंध किससे बता रहा है? इस adjective से. This is your adjective. So we can say that a preposition is a word which is placed before a noun to tell its relationship to another noun or to a verb or to an adjective. एक और चीज जो हमने नोटिस की है वो ये कि हमारा जो preposition है इसके बाद हमेशा कुछ ना कुछ हम लिख रहे हैं, कोई noun यूज कर रहे हैं ना. From the roof, on the table या of fruits. ये नाउन्स क्या कहलाते हैं? ये नाउन कहलाते हैं इसके ऑब्जेक्ट. दूसरी चीज हम जो नोट करेंगे वो ये दैट देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट टू अ preposition. preposition का एक ऑब्जेक्ट भी होता है. कई बार दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. जैसे हम सेंटेंस बना के देखें. He looked for his keys in every shelf and drawer. उसने अपनी चाबियां कहाँ ढूंढी? हर शेल्फ में ढूंढी, हर दराज में ढूंढी, जो ड्रॉर होती है ना. तो
यहाँ पर हम क्या करें, हमारे पास दो हम ऑब्जेक्ट्स हैं, एक शेल्फ है एक ड्रॉर है। ये है हमारा preposition एंड शेल्फ और ड्रॉर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नाउन है, उनका संबंध किससे बता रहा है, keys। तो अगेन वी आर यूजिंग अ preposition but now we have two objects। हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं। The train runs over hills and plains। hills पहाड़, plains समतल, है ना। तो ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजरती है। over is a preposition, it comes before two objects, hills and plains, before two nouns, and it is telling you the relationship of these two nouns to the verb runs। कहाँ कहाँ से ट्रेन रन करती है, ट्रेन के गुजरने को हम कहते हैं the train runs or the train crosses। So two things are clear, a preposition comes before a noun and this noun is called the object of the preposition। Sometimes we can have one preposition and another time, or in some sentences we can have more than one object। And we have seen that your preposition fond of tea क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट के पहले आ रहा है, placed before। But sometimes we can also use the object before the preposition। For example, if I want to stress my object, this is what I was looking for। preposition तो कहाँ है मेरा, एंड में, और इसका ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, यहाँ शुरू में। ये वो चीज़ है जिसे मैं ढूंढ रही थी, मैं इस चीज़ को एम्फसाइज करना चाहती हूँ। कई बार हम कहते हैं दिस इज द स्टूडेंट आई वॉज लुकिंग फॉर, टॉकिंग अबाउट, है ना। मैं इस बच्चे की, इस स्टूडेंट की बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट, हमारा preposition क्या है, अबाउट। किसकी बात कर रहा था, इसकी बात कर रहा था। दिस इज द ऑब्जेक्ट। सो समटाइम्स द ऑब्जेक्ट कैन also come at the beginning of the sentence and not immediately after the preposition। And in also interrogative sentences, see, we say what are you looking for। The preposition is here but the object is here। Who are you talking about? यहाँ पे ये who हमारा ऑब्जेक्ट है, preposition हमारा about है, जो कि क्वेश्चन के एंड में आया है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट हमारा preposition के बाद आए। कई बार हम अपने सेंटेंस में, स्पेशली क्वेश्चंस में, और जब हमें अपने ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करना है तो हम उसे सेंटेंस के शुरू में यूज करेंगे। प्रेपोजिशंस को हम कई कैटेगरीज में बांटते हैं। हम मेनली जिन प्रेपोजिशंस को पढ़ेंगे वो है सिंपल प्रेपोजिशंस। वी विल स्टडी दोज प्रेपोजिशंस व्हिच रिक्वायर सम स्पेशल अटेंशन। वी विल स्टडी प्रेपोजिशंस लाइक एट, ऑन, इन, इनटू, by, with, then between, among, for, to, till, above, below, under, and over. Some of the prepositions we can study, otherwise you can keep on studying. There are any number of prepositions. So let us take up the first preposition, that is at. We can use it for time and also for place। Let us first talk about time, और time से related जितने भी prepositions हैं उनको हम इस sequence में पढ़ लेंगे। at हम कहाँ use करते हैं,
टू शो एग्जैक्ट टाइम। जब हमें बिल्कुल पता है कि हम इस समय की बात कर रहे हैं, जैसे हम घड़ी का जो समय है उसके पहले हम कहते हैं आई गेट अप एट 6 o'clock in the morning. My college begins at 10 o'clock. The classes start at 10 o'clock. हम इस तरह के फ्रेजेस में भी यूज करते हैं एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एट द एंड ऑफ समथिंग, और तब इसका मतलब है बिल्कुल अंत में या बिल्कुल शुरू। Here I am not using time, I am just using a time phrase and I say at the beginning, that is immediately at the beginning of something, शुरुआत में, बिल्कुल starting में। तो at को हम यूज कहाँ करेंगे? जहाँ हम एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं। दूसरा preposition of time जो है that is on, in, I'll just underline them, on, in, by and to and also till। अब हम देखें on को। on को हम कहाँ यूज करते हैं? बिफोर names of days of festivals, जैसे हम कहते हैं on Sunday, है ना? हम सेंटेंस बना सकते हैं on Sundays I go to see my parents। हम लोग गांव छोड़ के शहर आ जाते हैं, संडे को हम घर जाना पसंद करते हैं। on Tuesdays, अब मैं इसमें प्लूरल क्यों लगा रही हूँ, एस क्यों लगा रही हूँ? हर मंगलवार को, हर संडे को, on Tuesdays I go to the temple। कुछ लोग हर मंगलवार को मंदिर जाते हैं हनुमान जी के, तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं on Tuesdays I go to the temple। तो on को हम कहाँ यूज करेंगे? दिन के नाम के पहले, और मैंने लिखा है फेस्टिवल्स भी, on दिवाली। लेकिन क्रिसमस और ईस्टर, देखो जब हम कहते हैं ऑन क्रिसमस भी देखेंगे आप जगह, कई जगह, और कई जगह आप कहेंगे एट, ये भी हम देखते हैं। जब हम ऑन यूज कर रहे हैं दैट मीन्स ड्यूरिंग द पीरियड, क्रिसमस के दौरान, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ दिवाली कई दिन मनाई जाती है, इसी तरह जो क्रिश्चियंस हैं वो लोग क्रिसमस को कई दिन तक सेलिब्रेट करते हैं। सो ड्यूरिंग द पीरियड, बट व्हेन यू से एट क्रिसमस दैट मीन्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड नॉट बिफोर और आफ्टर इट, एट ईस्टर एटसेट्रा। तो हम फेस्टिवल्स के आगे नॉर्मली ऑन यूज करते हैं, लेकिन कई बार कुछ केसेस में हम एट भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है इन। इन हम कहाँ यूज करेंगे? जहाँ की समय का अंतराल दिखता हो, पीरियड ऑफ टाइम। इसको आप फॉर के साथ मत कंफ्यूज करिए। जैसे हम कहाँ यूज करेंगे? जैसे मंथ, ईयर, है ना? समय के जो हम बताने वाले शब्द यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हैं, जैसे फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन। जैसे हम सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं? आई वॉज born in 1975 in the month of say January. तो मंथ के नाम के पहले भी मैंने इन यूज किया और ईयर के पहले भी मैंने यूज किया. और हम कहा करते हैं, जैसे हम कहना चाहें कि मैं एक दिन में या एक महीने में, 15 दिन में, एक वीक में इस काम को खत्म कर लूंगा. आई विल फिनिश इट इन अ वीक. आप कहेंगे मैडम हम विद इन अ वीक भी लिख सकते हैं. दोनों में थोड़ा सा फर्क है. नाउ यू आर एट अ स्टेज वेयर यू कैन
अप्रिशिएट दीज फाइनर डिफरेंसेस। इन अ वीक का मतलब है मैं पूरा सप्ताह लूंगा, और विद इन अ वीक का मतलब है एक वीक के अंदर अंदर मैं इस काम को खत्म कर लूंगा, है ना। माइनर सा डिफरेंस है, बट द डिफरेंस इज देयर। नेक्स्ट हमारा जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमने टेकअप किया है, टेकअप करेंगे हम, दैट इज बाय। बाय क्या शो करता है? बाय वह अंतिम समय दिखाता है जिस समय तक कोई काम कर लिया जाएगा। बाय शोज द लेटेस्ट टाइम by which we can finish a work. The latest time by which a work can be finished. For example, आप कहेंगे I will obtain my diploma by the year 2016. 2016 तक मैं अपना डिप्लोमा कर लूंगा। He comes home by 5 o'clock. 5 बजे तक, लेटेस्ट है ना, उसे लेट नहीं करता, 5 बजे तक वह घर आ जाता है। बाय को हम एक और जगह यूज करते हैं और प्रपोजिशन की ही तरह यूज करते हैं जब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रैवल की बात करते हैं, है ना। ही ट्रैवल्ड बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, तो ये क्या हो गए? यात्रा के तरीके। लेकिन यहाँ पर हम इसे एक प्रपोजिशन ऑफ टाइम की तरह देख रहे हैं। दूसरा मैंने अंडरलाइन किया है टू और टिल। इनको हम एक साथ पढ़ेंगे, टू और टिल। टिल को हम सिर्फ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, प्लेस के लिए यूज नहीं करते, ओनली टाइम। और टू को हम टाइम और प्लेस दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन टू के साथ हमें यूज करना पड़ता है फ्रॉम। आई स्टडी फ्रॉम 10 to 12 o'clock in the night. देखो दो prepositions यूज कर रही हूं मैं, टू कर रही हूं, इन कर रही हूं, इनफैक्ट 3 कर रही हूं, फ्रॉम, टू एंड इन, है ना। यहां से लेकर यहां तक, फ्रॉम 10 o'clock to 12 o'clock। और हम जगह के लिए भी यूज कर सकते हैं, ही ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू अलवर बाय ट्रेन, है ना। तो हम प्लेस और टाइम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। टिल हम सिर्फ टाइम के साथ यूज करेंगे, जगह के लिए बहुत कम यूज होगा, नहीं के बराबर। जैसे हम कह सकते हैं आई विल स्टडी टिल मिडनाइट। अधिकतर स्टूडेंट्स रात को पढ़ना पसंद करते हैं जब शांति होती है। आई विल स्टडी टिल मिडनाइट, फ्रॉम 8 o'clock, फ्रॉम 9 o'clock टिल मिडनाइट आई विल फिनिश दिस चैप्टर। सो इन दोनों को हम टिल और टू दोनों को टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रॉम, टू के साथ हमें फ्रॉम लगाना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक या इस समय से इस समय तक। अगर प्लेस के लिए यूज करें तो वो इस जगह से दूसरी जगह तक, टाइम के लिए यूज करें तो इस समय तक से लेके किसी दिए गए दूसरे समय तक। ये हो गए हमारे prepositions ऑफ टाइम। इनमें से कुछ prepositions ऐसे हैं जिनको कि हम preposition ऑफ प्लेस की तरह भी यूज करते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे एट, सबसे पहले हमने इसको टाइम के लिए यूज किया था। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन यूज इट फॉर प्लेस। और हम कहाँ यूज करते हैं इसको? जैसे हम एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज करते हैं, इसको हम एग्जैक्ट लोकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। फॉर स्मॉल प्लेसेस और सॉरी villages, and especially before addresses. You say I live in Delhi at Connaught Place. अब यहां पर हम देखेंगे एट और इन में क्या डिफरेंस है। इनको भी मैं यूज कर रही हूँ प्लेस के पहले और एट को भी यूज कर रही हूँ। दिल्ली भी एक जगह है,
कनॉट प्लेस भी एक जगह। तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब मैं इन यूज़ कर रही हूँ तो मैं उस जगह को एज एन एरिया कंसिडर कर रही हूँ। इन दिल्ली इट इज़ अ प्लेस, जरूरी नहीं कि चारों तरफ दीवार खींची हुई हो, बट रफली इन दैट एरिया, इन दो सराउंडिंग्स, बट द एग्जैक्ट लोकेशन इज एट कनॉट प्लेस। और कनॉट प्लेस में भी अगर आपके घर का कोई नंबर है, एट 48 कनॉट प्लेस, एट 54, जो भी आपके घर का नंबर है, सो एट वी यूज फॉर एग्जैक्ट लोकेशंस। और यहाँ मैंने लिखा है फॉर स्मॉल प्लेसेस, विलेजेस, सिटीज एट्सेट्रा। बट कई बार क्या होता है कि हम जब ग्लोबल डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, तब बड़ी जगह भी मात्र एक बिंदु, एक पॉइंट रह जाता है जगह में। जैसे हमारा कोई प्लेन है जो दिल्ली से वॉशिंगटन उड़ रहा है, या दिल्ली से बांग्लादेश जा रहा है, या बॉम्बे से बांग्लादेश जा रहा है, तो हम अगर कहीं रुकते हैं, किसी बड़े जगह भी अगर हम रुकते हैं, तो क्या कह किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे? The plane stops at Kolkata before flying to Dhaka। है ना, कोलकाता कोई छोटी जगह नहीं है, इट इज़ अ ह्यूज बिग सिटी, बट वी से एट कोलकाता बिकॉज वाइल टॉकिंग अबाउट लार्ज डिस्टेंसेस, जब हम बड़े दूरियों की बात करते हैं, लंबी दूरियों की जगहों की बात करते हैं, तब ये सिर्फ एक मैप पे सिर्फ एक बिंदु है, कोलकाता इज देयर, है ना। इट इज़ नॉट अ प्लेस वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज़ जस्ट अ पॉइंट वेयर यू कैन, अ प्लेस वेयर यू आर स्टॉपिंग। तो एट हम प्लेस में कहाँ यूज करेंगे? एग्जैक्ट लोकेशंस के लिए। ऑन भी हम प्लेस के लिए यूज करते हैं, कब? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस। जैसे पहला सेंटेंस हमने लिखा था, आई केप्ट द कीज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखी हुई है। अगर मैं कहूं अंडर द टेबल, मान लीजिए यही सेंटेंस बनाऊं मैं, आई केप्ट द कीज ऑन अंडर द टेबल, जगह बदल गई सिर्फ एक इस प्रेपोजिशन को चेंज करने से। अगर मैं कहती हूँ इन द टेबल, यानी कि टेबल में कोई ड्रॉर है, कोई शेल्फ है, और मैं कहती हूँ इन द टेबल, इन द एलमिरा, उसके अंदर, ऑन उसके ऊपर, अंडर उसके नीचे, है ना। तो इस तरह से प्रेपोजिशन चेंज करके हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप बदल देते हैं, है ना। हमने ये पढ़ा था, द रिलेशन ऑफ वन नाउन टू अनदर नाउन, टू अ वर्ब और टू एन एडजेक्टिव। तो जब हम सरफेस की बात करते हैं, देन वी यूज द प्रेपोजिशन ऑन। और दूसरी चीज ये है कि जब हम ऑन प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, तब क्या है, हमारी किन चीजों, कैसी चीजों की बात कर रहे हैं? थिंग्स विच आर स्टेशनरी, स्थिर है, जो मूवमेंट नहीं है, देयर इज नो मूवमेंट। आई से कीप द बुक ऑन द टेबल, है ना। लेकिन जब मेरे पास मूवमेंट है, एक चीज किसी के ऊपर मूव कर रही है, जंप कर रही है, जैसे हम कहते हैं द कैट, और यू कैन से द डॉग जंप्ड अपॉन हिम, नॉट ऑन हिम, यू से अपॉन हिम, है ना। यहां पे देखो मूवमेंट है, यहां पे सिर्फ चीज रखी हुई है। द बुक इज ऑन द टेबल, यू से ही जंप्ड अपॉन हिम, ही थ्रू वाटर अपॉन हिज फेस। रादर आज बोलचाल में तो हम कुछ भी बोल लें, लेकिन ग्रामेटिकली अगर हम देखें, देन अपॉन इज यूज्ड, दोनों प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हैं, लेकिन अपॉन हम कब यूज कर रहे हैं? जब हमारे पास मूवमेंट दिखाने वाला वर्ब है, जिस वर्ब से मूवमेंट एक्सप्रेस हो रहा है, उसमें हम अपॉन यूज करते हैं, ना कि ऑन यूज करते हैं। और जहां पे स्टेशनरी है हमारा ऑब्जेक्ट, वहां पर हम ऑन यूज, ही सेट ऑन द चेयर। ऑन के बाद हमने इन देख लिया, ऑन देख लिया हमने, सॉरी इन आई थिंक वी हैवंट सीन। इनको हम कहाँ यूज करेंगे? व्हेन थिंग्स आर इनसाइड समथिंग,
बट स्टेशनरी। और जैसे हमने ऑन और अपॉन को कंपेयर किया, उसी तरह से हम इन और इनटू को कंपेयर कर सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है? when something is inside something, but you say there is a pen in my pocket, why don't you say there is a pen into my pocket? कभी नहीं कहते हम, और अगर कोई कहता है तो हमें लगता है ये गलत बोल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? when something is inside something, है ना, and it is stationary। जैसे हम कहते हैं there is some water in the tank, there is no movement, रख है पानी उसके अंदर। या I have some money in my pocket, कुछ पैसे हैं मेरी जेब में। You never say I have some money into my pocket or there is some water into the tank. Why? Because these things are stationary। पानी है उसमें, पैसा रखा हुआ है, मूवमेंट नहीं है। लेकिन हम कहते हैं he jumped into the well, कुएं में कूद गया, मूवमेंट है ना। तो जहां पर मूवमेंट है, गति का आभास हो रहा है, वहां पर हम इनटू यूज करेंगे। गति का आभास नहीं है, वहां पर हम इन यूज करेंगे। Then there are certain other prepositions showing you place above, below, under and over। इन चारों को मैं एक साथ डील करूंगी। above और over, below and under। above और over दोनों का रफली एक ही मतलब है, vertically higher than। लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस है। देखो, हम कह सकते हैं there is a fan above my head और over। लेकिन over हम अक्सर तब यूज करेंगे when something is vertically higher than another thing, but touching it। जैसे हम कहते हैं I pulled a sweater over my shirt। above my shirt कभी भी नहीं कहेंगे, है ना। ओवरकोट होता है, आप इससे ध्यान रख सकते हैं। वी ऑलवेज वेयर एन ओवरकोट, नॉट एन अबव कोट। अबव और ओवर दोनों का मतलब है उससे ऊंचा, लेकिन ओवर में सेंस ऑफ टच है। सो वी से वी आई लाइक टू वेयर एन ओवरकोट इन विंटर्स। यू नेवर से आई लाइक टू वेयर एन अबव कोट इन विंटर्स। यू विल नेवर हियर द टर्म। सेम डिफरेंसेस बिटवीन बिलो एंड अंडर। अंडर में जैसे ओवर में सेंस ऑफ टच है, इसी तरह से इसमें भी सेंस ऑफ टच। बिलो, अंडर एंड बीनीथ। बीनीथ आजकल बहुत कम यूज किया जाता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं था। हम अक्सर बिलो या अंडर यूज करते हैं ना। लेकिन हालांकि इनका मीनिंग एक जैसा है। बिलो और अंडर का मतलब क्या है? विच इज लोअर देन। बट यू से आई वॉज वेयरिंग अ वार्म वेस्ट। वेस्ट क्या होती है? बनियान। अ वार्म वेस्ट अंडर माई शर्ट, नॉट बिलो माई शर्ट, है ना। अंडर जब टच कर रहा है, नीचे है, बिलो भी नीचे, अंडर भी नीचे, बट देयर इज अ सेंस ऑफ टच। He wore a woolen, or you can say a warm vest under his shirt। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, जब नई शर्ट होती है एंड यू वांट टू शो इट ऑफ इन द कॉलेज, हम स्वेटर नहीं पहनेंगे, कोट नहीं पहनेंगे, हम क्या करेंगे, नीचे एक थर्मल वेस्ट पहन लेंगे। सो यू से यू वेयर इट अंडर योर शर्ट, नॉट बिलो योर शर्ट। बिलो तो क्या मतलब होगा? जैसे पैंट आप नीचे पहन रहे हैं, बट नॉट योर वेस्ट। इट इज देयर इज अ सेंस ऑफ टच। अब जो prepositions में स्पेशली
आपको बताना चाहती हूँ, जैसे बाय और विद, हमने नरेश वॉइस पढ़ते समय देखा था बाय को हम कहाँ यूज कर रहे थे अपने एजेंट के पहले. सो बाय इज यूज बिफोर एजेंट, दैट इज द नेम ऑफ अ पर्सन. हम कहते हैं द लेटर was written by him. और with कहाँ यूज करते हैं? with हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले. इंस्ट्रूमेंट का मतलब औजार नहीं है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है साधन, है ना. with a pen, पेन से लिखा, उसने लिखा. करने वाला कौन है और किससे किया जाता है? जैसे he killed the snake with a stick. He fought the lion with bare hands. bare, सिर्फ हाथ थे उसके जिनसे उसने शेर का सामना किया. सो आई थिंक अब हमारे पास सिर्फ 2 प्रेपोजिशंस बचे, बिटवीन और अमंग. आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं. ये सारे चैप्टर्स आपके लिए एक रिवीजन है. कुछ नई अप्रोच हो सकती है. बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस होता है? वी यूज बोथ दीज प्रेपोजिशंस व्हेन वी आर डिवाइडिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग. जैसे हम कहेंगे he distributed sweets among the children, but I will say he divided his money equally between his sons. Between हम तब यूज करेंगे जब हम सिर्फ 2 के बीच में बंटवारे की बात कर रहे हैं. among जब 2 से अधिक व्यक्ति. There is no understanding between the husband and wife. 2 people, no understanding. So you use the preposition between, but the family always quarrels among itself. तो यहाँ पर फैमिली में 1 से 2 से ज्यादा मेंबर्स हैं, हम among यूज करें. एक और जो हम अक्सर गलती करते हैं, क्योंकि उन 2 प्रेपोजिशंस में सिर्फ एक एस का डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी एंड देन आई विल फिनिश द चैप्टर. बिसाइड एंड बिसाइड्स, सिर्फ एक एस का डिफरेंस है, लेकिन बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ. जैसे हम कहते हैं आई लाइक